Hello, my dear learners of class 11. How are you all? Great. Today we'll be discussing one of your lessons from Snapshots, and the title of the lesson is Birth. So you can think of it like the title in itself tells that there must be something related to someone's birth, है ना? किसी के जन्म से कुछ ना कुछ ये स्टोरी जुड़ी हुई होगी, नहीं? So before I start with the lesson, let me talk to you about something. Like you may see that there are so many youngsters who do their medical graduation or engineering, but do you think they can get very good jobs as soon as they complete their education or they get degrees? No. What is very much needed is experience. Yes, big companies and to achieve a skill you need experience, है ना? एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. आप कोई भी डिग्री ले लेते हैं, आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते जब तक, तब तक आप उसमें कह लीजिए कि एक्सपर्टाइज नहीं हो पाती आपकी, आप महारत नहीं हासिल करते. तो आपको लगता है ना कि हम कोई भी डिग्री ले, बट उसके बाद एटलीस्ट 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना बहुत नेसेसरी है. तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस to and give to so much weightage to experience. So that means experience is very much needed, and experience teaches you how to use your education in practical manner. कैसे प्रैक्टिस में लाना है जो आपने सीखा, वो बुक्स में सीखा, लेकिन उस बुक्स को सीखा जो आपने, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो उसमें आपको कौन हेल्प करता है? आपका एक्सपीरियंस. सो you get educated, but you have to get experience also. And in this, the story tells you something about this also, and birth no doubt is connected to it, right? So shall we start with the lesson? Great. Okay. Let us see who has written this lesson and from where this excerpt has been taken. Okay, let me start sharing screen with you. So, already? Okay, just a second and everything will be right in front of you. Here it is. So, let's see. Read it together. Birth. That is the title of the lesson. It has been written by A.J. Cronin. And from where has it been taken? It is a small piece of his book, Citadel, right? So, Birth, written by A.J. Cronin, is an excerpt from Citadel. The story highlights the importance of practical experience in medical field. देखो आ गई ना वही बात कि स्टोरी किस तरफ ध्यान हमारा दिलाती है कि आपने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया, लेकिन जब तक आपने पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा, वो आपने कितना प्रैक्टिकली उसको अचीव किया, राइट? सो दिस स्टोरी हाइलाइट्स the importance of practical experience. Practical experience, I emphasize, in medical field. It revolves around Andrew Manson, who just graduated out of medical school. तो स्टोरी किसके चारों तरफ घूमती है? एंड्रयू मैनसन, वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, द डॉक्टर, जो कि अभी अभी अपनी पढ़ाई मेडिकल साइंसेस की पढ़कर आया है.
It is an account of how the newly graduated medical practitioner helped in bringing Joe and Suzanne's child into this world despite going through a tough time with his girlfriend Christine. तो ये हमें स्टोरी हमें बताती है कि कैसे एंड्रयू मैनसन, जो कि अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आया है, वो कैसे एक कपल जो एंड सुजैन, उनका बेबी को कैसे जिंदगी देता है, हालांकि वो खुद पर्सनली भी एक टफ टाइम में से गुजर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने पर्सनल लेवल पर भी कुछ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, बट आपके प्रोफेशनल लेवल पर ऐसा कोई संघर्ष आपको करना पड़ता है और आप वहाँ पर बहुत मेहनत कर कर कुछ अचीव कर कर निकलते हैं। तो एंड्रयू मैनसन, जो कि एक डॉक्टर है और अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कर कर आया है और अभी किसी को असिस्ट करने लगा है, किसी बड़े डॉक्टर को, और वो पर्सनल लेवल पर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उसका एक मतलब कुछ झगड़ा चल रहा है, टफ टाइम है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या करता है वो। लेट्स सी व्हाट ही डज। Let's get an overview of the lesson. Birth. Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice. अभी उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, अभी पढ़ाई पूरी की है और किसी डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है। Who is that doctor? He is an assistant to Dr. Page in the small mining town of BLAENELLY. तो एक छोटे से शहर में, ब्लेनले नाम के शहर में, माइनिंग टाउन क्यों कहा? क्योंकि वहां पर माइंस है ना, खान है, छोटा सा शहर है, और वहां पर एक डॉक्टर है जिनका नाम है, वो डॉक्टर हैं डॉक्टर पेज। और क्योंकि ये अभी नया नया पढ़कर आया है तो ये उसको असिस्ट करना शुरू करता है। क्लियर? अब ही लव्स अ गर्लफ्रेंड नेम्ड क्रिस्टी, उसकी गर्लफ्रेंड है जिसको वो प्यार करता है। बट ऑन दैट डे ही हैड अ डिसअपॉइंटिंग डेट विद हर। अब ऐसा होता है ना कि आप मिले और अच्छा वक्त गुजारने की बजाय आप में झगड़ा हो गया, तो आप बहुत मूड ऑफ में वापस लौटते हैं। सैडली ही रीचेस ब्रायनगोर। इट इज नियरली मिडनाइट। द हॉस्पिटल इज क्लोज्ड। करीब आधी रात को पहुंचता है अपने घर की तरफ, और हॉस्पिटल तो नेचुरली तब तक बंद हो चुका होता है। बट जब वो पहुंचता है तो क्या होता है? When Andrew reaches his apartment, he finds a man named Joe Morgan waiting for him anxiously. जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी जिसका नाम है जो मॉर्गन, वो बहुत बेताबी से उसका इंतजार कर रहा है, इधर से उधर। आप जब बहुत एंक्शियस होते हो ना, बेचैन होते हो, तो आप टिक कर नहीं बैठ पाते, तो वो इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। He is there to take the doctor to his house to attend on his wife. वो किस लिए है वहां पर? जो मॉर्गन। देखिए, अभी एक कैरेक्टर आया, एंड्रयू मैनसन। ही इज अ डॉक्टर जो कि अभी नया नया पढ़कर निकला है। वो जब अपने घर के पास पहुंचता है तो उसको कौन मिलता है? जो मॉर्गन, जो कि बड़ी उत्सुकता से उसका वेट कर रहा है, और वो उसको अपने घर ले जाने को आया है उसकी वाइफ को अटेंड करने के लिए। He has been married for 20 years. कितने साल हो गए मैरिज को? 20 years. His wife was in labor for the first time. और उनका फर्स्ट बेबी होने वाला है, लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। और कितने ईयर्स हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं 20 ईयर्स बाद जिस कपल को बेबी होने वाला हो, वो कितने कितने एक्साइटेड होंगे और कितने बेचैन होंगे। So he is very keen and excited to become a father and wants Andrew to accompany him immediately. अब वो बहुत एक्साइटेड है और जल्दी से चाहता है कि मेरे साथ ही डॉक्टर मेरे साथ घर पर चले मेरी वाइफ को अटेंड करने के लिए। एंड्रयू एंड जो। अब एंड्रयू भी मना नहीं करता, हालांकि वो थका भी हुआ है एंड ही इज सैड ऑल्सो,
but he picks up his bag and accompanies him. Andrew and Joe set out for Joe's house, number 12, Blaina Terrace. एंड्रयू इज फीलिंग डल, बहुत मूड अपसेट है ना, डल फील कर रहा है. व्हेन दे रीच द हाउस, जो डजंट गो इन, जो अंदर नहीं जाता है, मतलब वो इतना बेचैन है ना कि बाहर ही इधर से उधर चहल कदमी कर रहा है. सो हु गोज इन? एंड्रयू मैनसन गोज इन, द डॉक्टर गोज इन. मिसेस जो इज देयर इन अ स्मॉल बेडरूम अपस्टेयर्स. सीढ़ी चढ़कर ऊपर एक कमरा है, वहां पर मिसेस जो, जिनका नाम सुजैन है, वो वहां पर बैठी, सॉरी लेटी हुई है. Here her mother or nearly 70 and a strong elderly midwife are waiting behind the patient. वहां पर और कौन कौन है? सुजैन मॉर्गन के साथ, मिसेस जो के साथ, उनकी मदर जो कि करीब करीब 70 ईयर्स की है, और एक उनकी मिडवाइफ. मिडवाइफ जिनको हम कह देते हैं दाई, जो कि डिलीवरी कराने के लिए आई, वो वहां पर पेशेंट के साथ. द ओल्ड वुमेन इज वाइज इन एक्सपीरियंस. वो अनुभवी औरत है, 70 ईयर्स की है. She realizes that the delivery will take some time and the doctor may not wait. उसको लगता है कि डिलीवरी में तो अभी टाइम है और कहीं डॉक्टर चला ना जाए. बहुत परेशान, मतलब थोड़ी सी परेशान है इस बात. बट एंड्रयू assures her that he is not going anywhere. एंड्रयू उनको क्या तसल्ली देता है कि वो कहीं भी नहीं जा रहा, मैं यहीं पर वेट करूंगा, डोंट वरी. तो उनको तसल्ली देता है. So he goes downstairs to drink a cup of tea in the kitchen. तो वो उनको टी ऑफर करती है और वो नीचे जहाँ किचन है वहां जाकर चाय पीने के लिए चला जाता है. Although he is tired and sleepy, he decides to stay until everything is over. थका हुआ है, नींद भी आ रही है, आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया, फिर भी वो डिसाइड करता है कि मैं डिलीवरी होने के बाद ही जाऊं. While sitting there, his mind, अब वो वेट कर रहे हैं क्योंकि डिलीवरी में अभी थोड़ा टाइम है, तो वहीं पर थोड़ा सा बैठा हुआ है. और जब आप खाली बैठते हैं तो आपका दिमाग दिन भर क्या क्या हुआ उस तरफ को चला जाता है, ठीक है ना. While sitting there, his mind starts to wander in the thoughts of other people. किस किस बारे में सोचता है, क्योंकि वो आज खुद सैड है और उसका खुद का झगड़ा हो गया है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. तो वो किन के बारे में सोचता है? उन उन लोगों के बारे में सोचता है जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो खुश नहीं है अपनी मैरिज से. So, like Barnwell, who foolishly devoted all his life to a woman who betrayed her. बार्नवेल के बारे में सोचता है जिसको एक औरत ने धोखा दे दिया. In addition, he remembers Edward Page, who married an ill-natured Bowden and was now living unhappily separately from his wife. एक और एडवर्ड पेज के बारे में सोचता है जो कि अब अकेला रह रहा है, सेपरेट हो गया है. ये सब सोचते सोचते एंड यू हैड टू गो बैक टू अटेंड द पेशेंट, मतलब सोचता है कि जाकर पेशेंट को देख लेता हूँ. Suzanne says to her mother, now who is Suzanne? Suzanne is Mrs. Joe Morgan, ठीक है ना, तो जिसको बेबी होने वाला है. Susan says her mother not to give her the chloroform if it would harm the baby. अब उसको क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है जिससे बेहोशी आ जाती है, कहती नहीं, अगर मेरे बेबी को इससे कुछ हार्म होता है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेहोश मत करना. मतलब आप सोच सकते हैं ना कि आफ्टर 20 years दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी, तो वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते. शी इज सो मच सेट अपॉन हैविंग दिस चाइल्ड कि किसी भी तरह से हमें ये बेबी चाहिए. बट एंड्रयू सीज नो हार्म इन एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेटिक. लेकिन एंड्रयू कहते नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा आपको अगर मैं एनेस्थीसिया थोड़ा सा दे दूं, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया, एक ही बात. एन आवर पासेस, इट इज पास्ट 4 AM. ऐसे ही एक घंटा बीत गया. 4 मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं.
After an hour long and harsh struggle, a child was born towards the dawn, but it is still and lifeless. 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद, इतनी तकलीफों के बाद, किसी तरह से सुबह जैसे होने लगी तो बेबी पैदा हुआ, बट इट इज स्टिल एंड लाइफलेस। मतलब हिल ही नहीं रहा बच्चा, स्टिल है बिल्कुल। आप सोच के देखिए, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बच्चे में लाइफ ही नहीं है, लाइफलेस, मतलब लाइफ ही नहीं है बच्चे में। ऑन सीइंग दिस, एंड्रयू शुक विद हॉरर। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, घबराकर हिल गया। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, हम ये ऐसे सिर्फ एक बार इमेजिन ही करें कि गॉड इस कपल को आफ्टर 20 years बेबी होने वाला है, एंड वो बेबी जो हो रहा है वो लाइफलेस पैदा हो रहा है, तो आप कितने डर जाएंगे, है ना। और आप डॉक्टर हैं, आप डिलीवर कराने आए। नाउ ही इज इन अ डायलेमा। अब उसको बहुत कश्मकश है, क्या करूं। डायलेमा होता है द्वंद्व, व्हेन यू आर अनेबल टू डिसाइड कि मैं, लाइक, 2 फ्लावर्स हैं, नाउ यू डोंट नो ये वाला फ्लावर लूं या ये वाला फ्लावर। ये भी आपकी फ्रेंड प्रेजेंट कर रही है, ये भी आपकी फ्रेंड प्रेजेंट कर रही है, तो पहले कौन सा लूं आप समझ ही नहीं पाते हो। तो ये दैट इज डायलेमा। नाउ ही इज इन अ डायलेमा whether to save the mother or the child। किसे बचाऊं, माँ भी वहां पर बेहोश पड़ी है, बच्चा लाइफलेस है, बच्चे में जान नहीं है, तो माँ को देखूं या बच्चे को देखूं। आप बताइए क्या किया होगा एंड्रयू मैनसन ने, किसको पहले देखा होगा आपके हिसाब से, किसको देखा होगा। Subsequently, he looks to the mother who needs immediate attention। वो कहता है कि एकदम माँ की तरफ देखता है और समझ जाता है कि माँ को पहले मुझे ध्यान देना है। So he gives the baby to the nurse and gives his attention to Suzanne, who is almost collapsing। तो वो जल्दी से बेबी नर्स को देता है और सुजैन को अटेंड करता है जो कि कोलैप्स करने वाली है। He gives her an injection and her heart is strengthened। उसको एक इंजेक्शन देता है जल्दी से, उससे उसका जो दिल है वो मजबूत होने लगता है, जिसकी धड़कन खत्म होने वाली थी, हार्ट बीट खत्म होने वाली थी, कमजोर हो गई थी हार्ट बीट, पल्स चली गई थी, ब्लड प्रेशर चला गया था, तो उसमें थोड़ी सी ताकत आए, ये उसने उसको इंजेक्शन दिया। जब उससे ये लगा कि नाउ शी इज ओके, संभल गई है हालत, एंड यू आस्क्ड अबाउट द चाइल्ड। जब माँ देखा माँ ठीक है, तो उसने नर्स को कहा, वेयर इज द बेबी। द मिडवाइफ वॉज थॉरली फ्राइटेंड। जो मिडवाइफ थी, जो कि डिलीवरी में हेल्प करने के लिए आई हुई थी, वो तो बुरी तरह से डरी हुई थी कि व्हाट इज दिस डॉक्टर डूइंग। मतलब बच्चा, क्या जवाब देंगे इस बच्चे के पेरेंट्स को कि बच्चा नहीं है। Taking it as a still child, she had dumped it beneath the bed amongst soaked newspaper। देखो, उसने तो ये सोचा कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, लाइफलेस है। उसने क्या किया, बिस्तर के नीचे गीले न्यूज़पेपर्स में दबा दिया, ऐसे रख दिया, मतलब ये सोच कर कि इसमें जान नहीं है। एंड्रयू पुल्ड आउट द चाइल्ड। जल्दी से नीचे बैठ के गया और बच्चे को पकड़कर खींचा। द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड। पूरा बच्चा था, उसका एक एक बॉडी पार्ट पूरा बना हुआ था, परफेक्टली फॉर्म्ड। मतलब एक एक ऑर्गन था बच्चे का, एक एक बॉडी पार्ट था। Andrew could understand that it was a case of suffocation due to lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood। उसने देखा बच्चे को कि बच्चा तो पूरा है, तो ये लाइफलेस सा क्यों लग रहा है। तो उसने ध्यान दिया कि जरूर ये किस बात का, कौन सा केस है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में
बढ़ जाता है। एंड्रयू स्टार्टेड गिविंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। उसने उसका ट्रीटमेंट करना जो उसे जरूरी लगा, हिम्मत नहीं छोड़ी। नर्स ने तो नीचे पटक दिया था ये सोचकर कि वो मरा हुआ बच्चा है, बट देखिए, अगर वो नर्स की बात, मिडवाइफ की बात में आकर वहीं छोड़ देता बच्चे को, लेकिन उसने ही डिड नॉट लूज हार्ट। उसने कहा नहीं, मैं अभी कोशिश करके देखूंगा इस बच्चे को बचाने की। तो he is suddenly reminded of a case he had seen at the medical school। जब वो पढ़ रहा था मेडिकल स्कूल में तो वहां पर एक केस कुछ इस तरह का आया था। उसको वो याद आ गया कि क्या ट्रीटमेंट दी थी तब डॉक्टर ने। वो याद आते ही he asks the nurse to bring hot water and cold water। कहने लगा जल्दी से जाओ, एक बर्तन में गर्म पानी लाओ और एक बर्तन में ठंडा पानी लाओ। ठीक है। He puts the child upon a blanket। उस बच्चे को एक ब्लैंकेट पे डाला और उसके हाथ पैर ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, और उधर वो पानी लेकर आ रही है। तो एक टब में he puts cold water in one tub and hot water in another। एक टब में हॉट वाटर डाला और दूसरे टब में कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर डाला, और उसमें इतना गर्म कि बच्चे को टच करके बच्चा जले नहीं, इतना हॉट ले लिया। He dips the child in the icy water and then in the lukewarm water by turn। अब क्या करना शुरू किया, एक बार बर्फ के पानी में डाला, वहां से निकाल के वो जो थोड़ा गर्म पानी था, ल्यूक वार्म था, उसमें डाला, फिर वहां से निकाला ठंडे पानी में डाला, बर्फ वाले में, फिर वहां से निकाला गर्म पानी में डाला। तो बार बार वो ऐसे करता रहा। The midwife astonishingly watches his crazy act and tells him again and again that it was a stillborn child। वो तो ऐसे देख रही है कि क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया। वो कह रही है डॉक्टर बस करो, ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, डॉक्टर प्लीज बच्चे में जान नहीं है, मत करो ऐसे, आप क्या कर रहे हो। मतलब उसके लिए तो ये पागलों वाली हरकत थी कि ठंडे में डाल रहा है, गर्म में डाल रहा है, ठंडे में डाल रहा है, गर्म में डाल रहा है। बट एंड्रयू डिड नॉट हीड। उसका तो बिल्कुल उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। ही कॉन्टिन्यूड विद हिज ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, और उसकी कोई बात मिडवाइफ की नहीं सुन रहा। वो अब मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरे तन से और मन से लगा हुआ है उस ट्रीटमेंट को देने में, पागलों की तरह से इधर से उधर, इधर से उधर किए चले जा रहा है। He puts pressure on the little chest। अब वो बेबी कितना होगा, न्यू बॉर्न बेबी, इतना इतना सा होता है ना न्यू बॉर्न बेबी, उसकी छोटी सी चेस्ट पे ना प्रेशर डाल रहा है, दबा रहा है उस चेस्ट को, प्रेशर डाल रहा है, ट्राइंग टू गेट सम ऑक्सीजन इन इट, कि किसी तरह से उसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन किसी तरह से चली जाए। एंड देन as if by miracle the baby's chest begins to rise and fall। और तब जैसे कि चमत्कार भगवान ने कर दिया हो, बच्चे की जो चेस्ट थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे नीचे ऐसे होने लगी। Some mucus comes out from one of his nostrils। और nostrils क्या है, this the nose, the holes in your nose are called nostrils, and this is one nostril and this is another nostril। so उस एक nostril में से थोड़ा सा म्यूकस निकल के आता है। अब देखिए, हो सकता है कि जो ये नॉस्ट्रल्स जहां से हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ब्लॉक थी बच्चे की। जब डॉक्टर ने उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया और उसकी चेस्ट को बार बार प्रेस किया, तो क्या हुआ, वो जो म्यूकस था वो बाहर निकल गया, है ना। Some mucus comes out from one of his nostrils। The white skin slowly turns pink and then comes the child's cry। तो वो जो वाइट पड़ा हुआ था बेबी, जैसे ही ऑक्सीजन थोड़ी सी अंदर जाने लगी,
और चेस्ट में इनहेल एक्सहेल होने लगा, है ना? सांस अंदर निकलने लगा, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर जाने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगी। वैसे ही बच्चे की जो स्किन का कलर था वो चेंज होने लगा। लाइफलेस जब हम कहते हैं सफेद पड़ गया बोल देते हैं हमारी भाषा, तो वो पिंक होने लगा, ब्लड में फ्लो स्टार्ट हुआ और बच्चा रोने लगा। एंड देन द चाइल्ड्स क्राई, और फिर बच्चा एकदम से रोया। कहते हैं ना कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका रोना जरूरी होता है। दैट शोज द चाइल्ड इज फाइन, दैट इन्फेंट हु इज जस्ट बॉर्न इज फाइन। तो उसका रोना बहुत जरूरी होता है। बच्चा अगर नहीं रोता तो वो ठीक नहीं माना जाता। द नर्स बिगिंस टू सॉब। ये पूरी एक्टिविटी नर्स देख रही है। माँ जो मिसेस जो मॉर्गन की मदर थी वो तो बेचारी डर से एक तरफ दीवार से ही लगी पड़ी थी, वो तो बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशनलेस हो गई थी। बट जो मिडवाइफ थी जो कि पूरा ये एक्शन प्रोसेस देख रही थी, और जैसे ही उसने देखा कि बच्चे में जान आ गई, बच्चा रोया, शी स्टार्टेड क्राइंग, वो तो रोने लगी। She exclaims with joy and surprise that the child has come alive. और रोते रोते खुशी में चिल्ला रही है कि बच्चा जिंदा हो गया, बच्चा जिंदा हो गया। He hands over the child to the nurse. और जैसे ही बच्चे में जान आ जाती है वो रोने लगता है, वो बच्चा उस नर्स को हैंड ओवर कर देता है। Feeling weak and confused, he pulls on his jacket and goes downstairs. आप सोचिए वो पिछले कितने टाइम से, वन इट टुक 1 आवर फॉर द डिलीवरी, उसके बाद 1 आवर लग गया उस बेबी में। पहले मदर को ट्रीट किया, फिर बेबी को जिंदा किया, यही कहेंगे ना। तो ही वॉज, मतलब वो इतना उस टाइम वीक फील कर रहा था ये सब एक्टिविटी पूरी कर कर, और उसको खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या किया, क्या हुआ, मैंने क्या किया उस टाइम। तो बस वो करता चला गया जो उसे ठीक लगा। तो ही पिक्स अप हिज जैकेट एंड गोज डाउनस्टेयर्स। ही टेक्स अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पिया नीचे किचन में जाकर। He finds Joe standing outside with a tense face. अब तक जो मॉर्गन को नहीं पता क्या हुआ है ना, वो बहुत टेंस है। तो बाहर जाता है, जो मॉर्गन को देखता है। Andrew assures him that both the mother and the baby are all right. आप इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि क्या हालत ऐसे में मदर फादर की होगी। फादर जो कि 20 इयर्स के बाद बेबी को देखने जा रहा है, और उसको अगर ये पता चले कि बेबी लाइफलेस है तो क्या हालत उस फादर की होगी। तो अभी जो मॉर्गन को तो कुछ पता ही नहीं कि ऊपर उसके घर में क्या क्या हुआ। एंड्रयू एश्योर्स हिम, उसको तसल्ली देते हैं वो, हाँ माँ बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। इट इज नियरली 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और अब कितना बज चुका है, करीब 5 o'clock बज चुका है। एंड्रयू इज इलेटेड विद हिज अचीवमेंट। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वो बाद में आप सोचते हो कि मैंने क्या किया, क्या किया तो आपको नहीं समझ में आता, बट वॉट यू अचीव्ड, आपने क्या उपलब्ध किया, है ना, कि उस मेहनत का नतीजा क्या होगा, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड का नतीजा क्या होगा। तो बहुत खुश था वो अपनी अचीवमेंट पे कि एक ऐसा बेबी जिसको कि सबने लाइफलेस समझ लिया था, उसको उन्होंने बचा दिया। उसको एंड्रयू मैनसन जो कि एक नया डॉक्टर था, उसने उसको बचा। He thanks God for having done something real at last, और भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपकी, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम कहते हैं ना कि वॉट एवर यू डू गॉड इज बिहाइंड योर बैक, कि गॉड हेल्प्स यू। तो गॉड ने उसको हेल्प किया और वो बहुत अच्छा कुछ कर पाया। दिस इंसिडेंट इन्फ्लुएंसेस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनले। आप इमेजिन कीजिए
कि एक छोटा सा शहर है, वहां पर ये न्यूज कैसे आग की तरह फैलेगी, है ना। सबको पता चलेगा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, जिसने कि एक बच्चा जिसको कि जो कि लाइफलेस पैदा हुआ था उसमें जान डाल दी। तो कितना अच्छा उज्जवल भविष्य होगा ऐसे डॉक्टर का, कितना ब्राइट फ्यूचर होगा ऐसे डॉक्टर, इजंट इट? तो इफ आई आस्क यू कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, hence we learn from this that we should never lose hope and keep trying. ये हमें, so what do we learn? कि we should always keep hope, अपनी पूरी हिम्मत से और पूरा एफर्ट हमें डालना चाहिए, and then God also helps us, isn't it? So let me ask you a few questions. Who is the main character of this story? Andrew Manson. And then, can you name the couple? Yes, Joe and Suzanne. They are going to have a baby after 20 years of their married life, right? And what happens when the child is born? The child is lifeless. And what does the doctor do to save the child? When it is in between the mother and the baby, whom does he treat first? The mother. And then he takes up the child and sees what the problem is. He understands कि उसको ऑक्सीजन नहीं जा रही है और उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए ये उसकी सोच थी कि जो उसने पढ़ा था कॉलेज में वो उसको ध्यान करता है और वही ट्रीटमेंट यहाँ पर अप्लाई करता है। ये भी सबके अंदर इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करता है और वही ट्रीटमेंट ध्यान करके उसको देता है और करता चला जाता है और एक मिरेकल कर देता है, एक चमत्कार कर देता है, एंड ही सेव्स दैट बेबी। और जब आप ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अलग हटके करते हैं तो पीपल रिकॉग्नाइज, लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपकी अचीवमेंट को पहचानने लगते हैं। तो व्हाट दिस लेसन टीचेस अस कि सिर्फ बुकिश नॉलेज पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी वेटेज देनी चाहिए। एंड when we are in difficult situations we should not lose hope, and then God helps us। उस वक्त अगर हम हार ना माने और मेहनत से लगे रहें, then God helps us। So we'll be taking part 2 of this lesson, and in that lesson we'll be doing MCQs, short questions and long questions. So hope you all have understood the lesson. I personally like this lesson very much and hope you all have liked the lesson. So this is all for today. Thank you and goodbye. One more thing before I say goodbye to you. Students, like this video, and please, those who have not yet subscribed to my channel, please subscribe to English. So this is all for today. Goodbye.